Hello everyone, I welcome you all in today's lecture. Today we are going to study about the filtration from the chapter Pharmaceutical Engineering. Okay, so generally you have already performed the process of filtration during the several practicals and experiments. Okay, so here in this chapter we are going to study about the equipments which are going to be used to carry out this filtration process, the introductory part about the filtration, after that the factors affecting the rate of filtration and the theory of filtration. Okay, so first of all let's start with the definition of filtration. So filtration is the process where the solid particles are separated from the liquid or gas by passing it through a porous medium. So what is filtration here? Filtration is nothing but the separation of solid particles from the liquid or gas by passing that particular solid particles through a porous medium. Say for example, in laboratory what you do, you take the filter paper. Okay, that is nothing but your filter medium. Okay, that is nothing but your porous medium. उसमें pores present होते हैं ना filter paper में. So that is nothing but the porous medium. You hold that particular filter paper into that funnel and you place the funnel into certain container. Okay, means here what is porous medium? Filter paper is nothing but the porous medium, and from that porous medium you pour that particular solid material, or say for example slurry. ठीक है, तो you pour that particular material, the solid material will retain on the filter paper and the liquid will get collected or separated in the container. ठीक है, means that retained material is nothing but the your residue which is present on the filter paper. That container में जो भी material present रहेगा that is nothing but your filtrate, and that filter paper or the porous medium will act as a filter medium. Okay, so this is the basic introductory part about the filtration. Okay, now in this diagram it is visible that what is this is nothing but your funnel, this is your filter medium. Okay, and this is the slurry. Okay, and this is the filtrate और container जिसमें से आपका फिल्टर फनेल में से पास होके क्या करेगा, वो बॉटम में कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा. ओके, सो फिल्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड from a fluid by passing the same, means the solid material through a porous medium. Consider filter paper जो कि आप सब लोगों को पता है. ओके, through a porous medium that retain the solids. ठीक है, यहाँ पे आपका filter paper present रहेगा, so it will retain the solid above it but allow the fluid to pass through. उसमें से क्या चला जाएगा, फ्लूइड. मतलब क्या होगा, एक फेस था जिसमें सॉलिड लिक्विड प्रेजेंट है, तो सॉलिड फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा क्योंकि फिल्टर पेपर की पोर्स की साइज वो सॉलिड मटेरियल से कम होगी. दैट्स वाई इट विल रिटेन्ड ऑन दैट फिल्टर पेपर एंड दैट लिक्विड विल pass through the filter paper. Okay, so the next is the terms which is used in filtration process. First is the slurry. What is slurry? The suspension which is to be filtered is known as slurry. ठीक है, say for example आपको एक मीडिया है, उसमें से आपको सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है, तो अगर वो सस्पेंशन फॉर्म में होगा तो दैट सस्पेंशन इज रेफर्ड एज द स्लरी. ओके, देन फिल्ट्रेट. द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज रेफर्ड एज द फिल्ट्रेट. मीन्स यहाँ पे बॉटम में इसमें से पास होके जो भी लिक्विड क्लियर लिक्विड कलेक्ट होगा दैट इज टर्म्ड एज द filtrate. Okay, next is the filter medium. Okay, what is filter medium? The porous medium used to retain the solid is known as the filter medium. आपका filter paper which have the number of pores which is lesser in size than the solid material. Okay, so that is nothing but the filter medium. Then filter cake. The accumulated solid on the filter आर रेफर्ड एज द फिल्टर केक. मतलब आपका स्लरी में से जो भी सॉलिड पार्टिकल्स आपके फिल्टर पेपर पे रिटेन रहेगा उसको आप बोलोगे फिल्टर केक.
जिसमें से आपका मटेरियल पास हो रहा है, मतलब सेपरेशन के लिए जो मीडियम, पोरस मीडियम रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ नथिंग बट योर फिल्टर मीडियम। जो क्लियर लिक्विड बॉटम में फिल्टर मीडियम में से पास होके कलेक्ट होगा, आपको लास्ट में फाइनली मिलेगा, दैट इज़ रेफर्ड एज द फिल्ट्रेट। और जो मटेरियल जिसमें कि जो ऐसा सस्पेंशन जिसमें से आपको सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है, दैट इज रेफर्ड एज द स्लरी। सो दीज आर द टर्म विच आर यूज ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सिंपल लेबोरेटरी बेसिस पे लैब में आप जो करते हो उसी को लिखना है आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इट इज़ नथिंग बट द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, से फॉर एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं फ्रॉम दिस, दैट इज pores of filter medium are smaller than the size of particles to be separated. Yes, why? Because हमें solid को liquid से separate करना है, तो filter paper की pore size obviously आपके solid particles से कम होनी चाहिए, तो ही वो उसमें से pass ना होते हुए उस पे ही रिटेन रहेगा। ओके, देन फिल्टर मीडियम दैट इज फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ सपोर्ट और मेश। ठीक है, कि क्या होगा कि आपका परफोरेटेड बॉटम है, सपोज से फॉर एग्जांपल बकनर फिल्टर है, ठीक है, तो उसके इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोर्स, ठीक है, या तो दूसरा कोई फिल्टर मीडियम है जिसपे नीचे मेश लगी होती है और उसके ऊपर आपको फिल्टर मीडियम रखना है। देन स्लरी इज प्लेस्ड ओवर द फिल्टर मीडियम। स्लरी को आप पोर कर सकते हो या सीधा सीधा पूरा स्लरी को आप रख सकते हो। इट इज़ प्लेस्ड ओवर द फिल्टर मीडियम। देन ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, क्यों, दो सिस्टम, फिल्टर पेपर के नीचे, फिल्टर पेपर के ऊपर, पोरस मीडियम के नीचे, पोरस मीडियम के ऊपर, अपवर्ड प्रेशर, अपस्ट्रीम प्रेशर एंड डाउनस्ट्रीम प्रेशर। तो ये ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर मीडियम फ्लूइड फ्लोज थ्रू द फिल्टर मीडियम। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि दैट पर्टिकुलर फ्लूइड विल फ्लो थ्रू द फिल्टर medium. After that, gravity is acting over the liquid medium, and that's why the liquid will move downwards and get passed through the filter medium. Okay, so solids are trapped on the surface of the filter medium due to pore size, due to the pressure differences, and due to the gravitational force which acts on the liquid medium. Okay, so this is the process of filtration. Step by step क्या करना है आपको? First of all, you have to mention that the pore size of the filter medium, then the filter paper is placed, after that the slurry is placed over the filter paper, and due to the difference in the pressure and gravity which acts on the liquid medium, the filtration will occur and there will be the separation of solid particles which retained on the filter medium, and the liquid will move downwards and get collected at the container. Okay, so this is the process of filtration. Then next is the applications of filtration, that is where this filtration process actually used or apply. Okay, so first in case of the production of sterile products. Okay, so in that case the HEPA filters or laminar air bench membrane filters, so these filters are used for the production of sterile products. Okay, the syringes, injections, जो भी स्टराइल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, ये सारे स्टराइल प्रोडक्ट्स के लिए द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज नेसेसरी. सो दैट्स वाई द हेपा फिल्टर्स, लैमिनार एयर फ्लो, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर used. Okay, so they at that time in case of the production of sterile products, the filtration process is applicable. Okay, so next is the production of bulk drugs. So in case of the production of bulk drugs, the filtration process is again used. Okay, then प्रोडक्शन ऑफ द लिक्विड डोजेस. नेक्स्ट क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड डोजेस दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज यूज. इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इन दैट केस ऑल्सो दिस filtration process is used. So these are the applications of your filtration process. Okay, then next is the mechanism of filtration, कि कौन से mechanism से this filtration can occur. Okay, so first is सिर्फ क्या है कि प्रोसेस आपकी पूरी सेपरेशन ही होगा, फिल्ट्रेशन ही होगा सॉलिड का लिक्विड से या तो गैस से, बट कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए होगा उस कैटेगरी को बेसिस में रख के उसे 4 अलग मैकेनिज्म का नाम दिया है. फर्स्ट इज द स्ट्रेनिंग. ओके, सो इट इज सिमिलर लाइक सीविंग की क्या रहेगा, परफोरेटेड, आपके फिल्टर्स परफोरेटेड जिसमें नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट है वो रहेगा, सीविंग इफेक्ट मिलेगा उसको. दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज कैन नॉट पास थ्रू द स्मॉलर पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडियम. मतलब क्या है, हियर इन दिस द फिल्टर मीडियम विल एक्ट एज अ
act is responsible for the separation, because the filter medium will have the less pore size than that of the particles, क्योंकि पार्टिकल के पोर साइज ज़्यादा रहेंगे और फिल्टर मीडियम के कम, उस वजह से फिल्टर मीडियम में से आपके पार्टिकल्स पास नहीं होंगे, लिक्विड पास होगा उसमें से, और वो लिक्विड और सॉलिड दोनों सेपरेट हो जाएगी. ओके, सो दैट मैकेनिज्म इज रेफर्ड एज द स्ट्रेनिंग. देन नेक्स्ट इज द impingement. Impingement means what? That is solid having the momentum move along the path of the streamline flow and strike. That's why strike means what? Impinge. Okay, तो so that particular solid, जो कि से फॉर एग्जाम्पल कि आपका सॉलिड और लिक्विड क्या है, सस्पेंशन में प्रेजेंट है, सो इट विल फ्लो विद द लिक्विड. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड विल सडनली बैंग, स्ट्राइक, impinge themselves on the filter medium. So that's why that mechanism is termed as the impingement. Okay, thus the solids are retained on the filter medium. So that solid is retained on the filter medium, and this mechanism is referred as the impingement. Okay, next is the entanglement. Entangled होते हैं particles, so that particular particles will become entangled in the mass of fibers due to smaller size of particles than the pore size. Thus the solid retained on the filter medium. यहाँ पे क्या है, entangled, the particle will get entangled and get retained on the filter medium. So this, due to this entangling process, it is referred as the entanglement mechanism. Okay, so next is the attractive forces. Means filtration occurs because of the attraction of that particular solid particles and your filter medium. Okay, solid are retained on the filter medium as a result of attractive forces between the particles and the filter medium. Means that attractive forces are responsible for the separation of the solid from the liquid, because that solid particles have the attractive forces with the filter medium. Okay, so this is how the solid gets separated from the liquid by the attractive forces. Okay, so these are the mechanisms of filtration. Okay, then next is the theory of filtrations. Okay, so generally the rate of flow may be expressed as, that is, rate of filtration or rate of flow equals to the driving force by resistance. Okay, here, so here what is driving force? Driving force is nothing but the pressure differences between the two stream. Upstream means above the filter medium and downstream means below the filter medium. Okay, means rate, speed of filtration, speed of flow depends on the driving force by resistance. Okay, and that resistance is not constant there, it will increase with an increase of the deposition of solid. जैसे कि solid का deposition बढ़ेगा, retention of solid will increase, then the resistance will increase. ठीक है, क्यों? Because starting में resistance कम रहेगा, solid का retention नहीं होगा, लेकिन बाद में जैसे solid की layer filter medium पे cake उसका बन जाएगा, at that time the resistance will increase. Okay, so therefore filtration is not steady state, not at all, because what is happening here, एक टाइम तक, एक पॉइंट तक फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन पूरा जब आपका सॉलिड पे केक, एक फिल्टर केक बन जाएगा, तो एट दैट टाइम द रेजिस्टेंस विल अकर. ठीक है, सो दैट्स वाई द फिल्ट्रेशन इज नॉट अ स्टेडी प्रोसेस. ओके, एंड द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम इन लीटर्स पर यूनिट टाइम. ओके, कि क्या है कि इतना टाइम में आपका कितना वॉल्यूम, कितना लीटर्स में आपका सेपरेशन हुआ है लिक्विड और सॉलिड का. सो दिस इज हाउ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, द स्पीड ऑफ filtration is expressed. Okay, then the rate of flow will be greatest at the beginning of filtration process since the resistance is minimum. Okay, देखिए आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि से फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि आप लेबोरेटरी में कैसा फिल्ट्रेशन करते हो. ठीक है, कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में सपोज आपको 10 ml आपका स्लरी को, सस्पेंशन को फिल्टर करना है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका फिल्ट्रेशन, क्योंकि फटाफट से आपका लिक्विड क्या होगा, पास होते जाएगा आपके फनेल में से, फिल्टर मीडियम में से. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिस पॉइंट पे क्या होगा कि आपका फिल्टर मीडियम पे केक क्रिएट होगा आपके सॉलिड्स का. सो उस केक से क्या होगा
कि लिक्विड तो सारा शुरुआत से निकल जाएगा, लेकिन वो केक क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा कि जो कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स है उसको स्लोली 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 पास होने देगा। मीन्स यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ फ्लो कैसा होगा, इट विल बी ग्रेटेस्ट एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट में द रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटेस्ट, क्योंकि फिल्टर मीडियम में कोई बंधन कोई रेजिस्टेंस ऑकर नहीं हुआ है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एज सून एज द प्रोडक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ केकिंग गेट स्टार्टेड, द रेट ऑफ और द रेजिस्टेंस विल बी एनहांस, ठीक है। सो उससे क्या होगा, रेट भी कम कम होते जाएगा रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस इज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन का रेट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा स्टार्टिंग में तो फिल्ट्रेशन का रेट स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो आफ्टर फॉर्मिंग द फिल्टर केक, इट्स सरफेस एक्ट्स एज अ फिल्टर मीडियम एंड सॉलिड्स कंटिन्यूसली डिपॉजिट एडिंग टू द थिकनेस ऑफ केक। येस, बिकॉज आपका लिक्विड कम कम होते जाएगा, मतलब सॉलिड की केक की थिकनेस बढ़ती बढ़ती जाएगी एंड इट्स सरफेस विल एक्ट्स एज अ फिल्टर मीडियम। ओके, सो यू कैन सी द डायग्राम। सो दिस इज द P1 मीन्स क्या, अपवर्ड स्ट्रीम का क्या है आपका प्रेशर, दिस इज द P2 मीन्स डाउनवर्ड स्ट्रीम का प्रेशर, दिस इज द लेंथ, ओके, एंड दिस इज द सरफेस एरिया। ओके, सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस पैरामीटर्स की ये है, P1 अपवर्ड स्ट्रीम का प्रेशर है, P2 डाउनवर्ड स्ट्रीम का प्रेशर है, इट इज़ द सरफेस एरिया, L इज़ द लेंथ ऑफ योर सॉलिड, जो कि सॉलिड का आपका केक फिल्टर केक प्रेजेंट है, एंड विस्कोसिटी क्या है कि जितना ज़्यादा विस्कोसिटी रहेगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना कम रहेगा। ओके, सो रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट दैट इज प्रेशर अपस्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउनस्ट्रीम बाय द लेंथ ऑफ द कैपिलरीज। ओके, सो दिस इज हाउ द रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड कि अपस्ट्रीम का प्रेशर कितना है, फ्रॉम दैट यू हैव टू माइनस द डाउनस्ट्रीम प्रेशर बाय द लेंथ ऑफ कैपिलरीज। ओके, next are the factors affecting the rate of filtration. First is the permeability coefficient. Okay, means क्या कि permeable कितना है आपका liquid from that solid through the filter medium. Okay, so that is important. Why? Because the K constant, that is permeability, it is permeability coefficient. The constant K represents the resistance of both the filter medium and the filter cake. Okay, कि resistance filter medium या filter केक कैसा शो कर रहा है, दैट इज नथिंग बट योर कांस्टेंट के। एज द थिकनेस ऑफ द केक इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन विल डिक्रीजेस। वाई? बिकॉज द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, वो रोक रहा है कहीं तो कि फिल्ट्रेशन या लिक्विड को पास होने से। सो दैट्स वाई एज द थिकनेस ऑफ द केक इंक्रीजेस, मीन्स क्या, थिकनेस इंक्रीज हो गई तो परमेबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, सो दैट्स वाई द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज एंड दस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डिक्रीज। मीन्स क्या कि थिकनेस बढ़ी, मीन्स थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, बिकॉज थिकनेस बढ़ेगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस उससे बढ़ रहा है। ओके, देन एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम, जितना ज़्यादा एरिया उतना फास्ट फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन विल बी दैट मच फास्टर। ओके, द टोटल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फ्लोइंग फ्रॉम द फिल्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ फिल्टर, जितना ज़्यादा फिल्टर का एरिया रहेगा। ओके, एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और द फिल्ट्रेट, कि कितना वॉल्यूम का फिल्ट्रेट आप कलेक्ट कर रहे हो, जितना ज़्यादा आपका फिल्टर मीडियम का एरिया है। ओके, द एरिया कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग द लार्जर फिल्टर्स। एरिया को हम क्या कर सकते हैं, लार्जर फिल्टर्स को यूज़ करके बढ़ा भी सकते हैं, जैसी ज़रूरत है हमें उस हिसाब से, एज पर योर डिज़ायर। ओके, थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। ओके, मीन्स अगेन हमने पढ़ा है कि एज द थिकनेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीजेस। वाई? बिकॉज हियर द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो कहीं तो रोक रहा है वो फिल्ट्रेशन से। ओके, मीन्स थिकनेस इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि थिकनेस बढ़ेगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपका कम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा फिल्ट्रेशन होने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रेशर ड्रॉप, means the rate of filtration is proportional to the pressure differences across the both the filter medium and the filter cake. Okay, so here क्या हो रहा है आपका कि pressure difference से आपका rate of filtration is proportional to the pressure difference। कहाँ कहाँ पे pressure difference? On the filter medium and as well as the filter cake. Okay, so the pressure drop can be achieved in the number of ways. So first is the pressure, that is the simplest method being to pump the slurry into the filter under pressure, कि pumping होगा आपके slurry का, so that's why the pressure difference can occur.
centrifugal force, that is the gravitational force, could be replaced by centrifugal force in the particle separation. Okay, then last is the viscosity of filtrate. Again, जितना ज़्यादा विस्कस रहेगा उतना फिल्ट्रेशन को ज़्यादा टाइम, जितना कम विस्कस उतना उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फास्टर होगा. ओके, सो इट वुड बी एक्सपेक्ट दैट एन इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, सो दैट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. ठीक है, मतलब विस्कोसिटी कम तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा, विस्कोसिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम. सो these were the factors affecting the rate of filtration. अगर आपको एडिशनल फैक्टर्स लिखना है तो यू कैन राइट द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम. कि क्या है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. व्हाई? बिकॉज एज मच द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन विल बी एनहांस. ज़्यादा उसको जगह मिलेगी, ज़्यादा फास्ट विगरसली इट विल गेट फिल्ट्रेट. ओके, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड. अगर नेक्स्ट लिखना है आपको एक्स्ट्रा, सो द टेम्परेचर will play an important role in the rate of filtration. Why? Because viscosity is reduced by the rise in temperature. Okay, so viscosity क्या है, आपके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन का रेट कम होगा, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो बाय द राइज इन टेम्परेचर. ओके, मीन्स व्हाट, विस्कोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय द राइज इन टेम्परेचर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ विस्कस ऑयल्स, सिरप्स एक्सेट्रा is generally carried out by the accelerated by the filtering them when they are the hot. Okay, कि जब आपका जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो उसमें एक फैक्टर आप लिख सकते हो एडिशनल सरफेस एरिया का. नेक्स्ट है टेम्परेचर का. टेम्परेचर कैसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि आपका अगर सस्पेंशन विस्कस है ज़्यादा तो उसकी विस्कोसिटी आप कम कर सकते हो बाय द राइजिंग टेम्परेचर. जैसे कि क्या होगा, आपका विस्कस ऑयल्स सिरप का फिल्ट्रेशन ऐसे ही करते हैं कि उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ाने के लिए जब वो हॉट होता है तभी उसको फिल्टर कर लो. मतलब क्या है कि उसकी वजह से ठंडा होने के बाद ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, वो विस्कोसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट इज द पार्टिकल साइज. मीन्स the rate of filtration is directly proportional to the particle size of the solid to be removed. Why? क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा सॉलिड का उतना प्रॉपरली वो रिटेन करेगा फिल्टर मीडियम में. कम रहेगा तो फिल्टर मीडियम का पोर साइज से कम नहीं रहना चाहिए. ओके, मीन्स हियर द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट इज द फिल्टर मीडिया. The filter media acts as a mechanical support for the filter cake and is also responsible for the collection of solid. Means what here, filter media क्या है, सिंपल लेबोरेटरी में आपका जो फिल्टर पेपर है that is nothing but the filter media. Okay, so the desired properties of filter media, that is it should have sufficient mechanical strength. because क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा लेबोरेटरी में ऐसा होता है कि सिंगल फिल्टर पेपर यूज़ करोगे और उस पर ज़्यादा क्वांटिटी में आपका स्लरी प्लेस करोगे तो फिल्टर पेपर फट जाता है. मतलब क्या है उसका कि इट हैज़ द लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ. लेकिन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़, आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए फिल्टर मीडिया की, कि इट शुड हैव द सफिशेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इट मस्ट बी इनर्ट. आपके सॉलिड मटेरियल से या तो आपके फिल्ट्रेट से कुछ भी वो रिएक्ट, उसकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. सो इट मस्ट बी इनर्ट. इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द डिजॉल्व्ड मटेरियल. जो भी डिजॉल्व्ड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी या तो दूसरा कंटेमिनेशन आ जाएगा, दूसरा रिएक्शन हो जाएगा उसमें. ओके, इट शुड अलाउ द मैक्सिमम पासेज ऑफ लिक्विड. कि जिस काम के लिए उसका काम क्यों है उसका फिल्टर मीडिया का, कि सेपरेशन मैक्सिमम अमाउंट में वो सेपरेशन अलाउ करना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ योर फिल्टर मीडिया. कि कौन से टाइप के फिल्टर मीडिया अवेलेबल है. फर्स्ट इज द वोवन फिल्टर्स. नेक्स्ट इज द नॉन वोवन फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स, पोरस फिल्टर्स. ओके, फर्स्ट इज द वोवन फिल्टर्स. की क्या है कि जिसमें कि वीविंग यूज़ की जाती है. ठीक है, सो दिस विल इंक्लूड द वायर स्क्रीनिंग, फैब्रिक्स ऑफ कॉटन, वूल एंड नायलॉन. ओके, सो द वायर स्क्रीनिंग एग्जाम्पल द स्टेनलेस स्टील इज ड्यूरेबल, देन रेजिस्टेंस टू प्लगिंग एंड इजीली क्लीन्ड. ओके, मीन्स क्या आपके जो सीव्स है सो दैट कैन बी यूजफुल फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. देन कॉटन इज अ कॉमन फिल्टर and nylon is superior for the pharmaceutical use since it is unaffected by the mold, fungus or bacteria and has negligible absorption properties.
तो सबसे वाइडली यूज्ड जो ओवन फिल्टर में से है दैट इज नायलॉन. वाई? बिकॉज इट हैज़ द गुड प्रॉपर्टीज ओवर द cotton, wool and stainless steel, because nylon is unaffected by the fungus and bacterias. Okay, and it has the negligible absorption properties. ये कुछ भी absorb नहीं करेगा, inert रहेगा और contamination भी avoid करता है. Okay, then non-woven filters, that is filter paper is common filter medium since it offers controlled porosity, limited absorption characteristics and it has the very low cost. ओके, आपका नॉन वोवन में क्या आता है? फिल्टर पेपर आपका, जो आप लैब में यूज़ कर सकते हो. ओके, तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है, चीप है उसका कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके लिमिटेड है, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है वो, मतलब सेफ है. ओके, देन मेम्ब्रेन फिल्टर्स, दीज आर बेसिक टूल्स फॉर द माइक्रो फिल्ट्रेशन, जहाँ की पोर साइज बहुत कम पोर साइज की ज़रूरत है ना, साइज आपका जिसको सेपरेट करना है वो सॉलिड मटेरियल्स की पोर साइज पार्टिकल साइज कम है, तो उसके लिए फिल्टर मीडियम आपका लेबोरेटरी वाला नहीं कर सकते आप, नॉन वोवन वाला. ठीक है, तो उस टाइम पे आपको यू हैव टू यूज़ द मेम्ब्रेन फिल्टर्स जिसका पोर साइज कम होता है. ओके, सो इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टराइल सॉल्यूशंस. देन these filters are made by casting of various esters, such as it is made from the cellulose, nylon, Teflon, polyvinyl chloride, etc. Okay, the filter is a thin membrane with millions of pores per square centimeter of the filter surface. मतलब उसका pore size इतना कम होता है. Okay, so that's why ये it can be used for the preparation of the sterile products. Okay, then next is the porous plates. Porous plates, these include the perforated metal or rubber plates, जिसको plates को ही pores होते हैं. Okay, so natural porous materials such as the stone, porcelain or ceramics and sintered glass. So these are the examples. sintered glass filters आपने लैब में देखा होगा, porcelain देखा होगा, ceramics भी देखा होगा. So these are nothing but the porous plates की जिसमें वो material पे ही क्या होता है, number of pores, number of holes are present. Okay, so these are the type of your filter medium. woven filters जिसमें क्या होता है आपका वायर स्क्रीनिंग, फैब्रिक्स कॉटन से, वूल या नायलॉन से. नेक्स्ट इज द नॉन वोवन, आपके लेबोरेटरी स्केल वाला फिल्टर पेपर. देन मेम्ब्रेन फिल्टर जो कि स्टराइल प्रोडक्ट्स के लिए और जिसकी पोर साइज बहुत बहुत कम होती है. लास्ट इज द पोरस प्लेट्स जो कि बना होता है मेटल या रबर प्लेट्स विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ होल्स एंड पोर्स. ओके, then next are the filter aids. Okay, so filter aids forms a surface deposit additional help. Filter aid, okay, so filter aids forms a surface deposit which screen out the solids and also prevents the plugging of the supporting filter medium कि कोई clogging plugging नहीं होनी चाहिए. So that's why the filter aids are used as a support, as a help. Okay, object of the filter aid, what is the objective for using the filter aids? That is prevent the medium from becoming blocked, आपके pores को block करने से बचाता है, and to form an open porous cake, so reducing the resistance to flow the filtrate. resistance reduce होगा तो आपका rate of filtration बढ़ेगा. तो ये सारी चीज़ों के लिए, clogging, blocking हटाने के लिए और resistance को कम करने के लिए these filters are aids are used. Okay, characteristics of the filter aids, that is chemically inert to liquid, being filtered and free from impurities. Okay, it should be non-reactive, it should be inert and it should be free from the impurities. इसमें कोई भी impurities ना हो. Okay, low specific gravity so that the filter aids remain suspended in the liquid. It should possess the low specific gravity. Okay, porous rather than the dense so that previous cake can be formed. Okay, so it should be पोरस, ज़्यादा डेंसर नहीं होना चाहिए, एंड रिकवरेबल. वी शुड और वी कुड रिकवर इट. ओके, एग्जाम्पल ऑफ द फिल्टर एड इज द केसलगर, देन टैल्क, चारकोल एंड बेंटोनाइट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर filter aid. Okay, so this is all for today's lecture. Today we have started with the filtration, we have studied the definition of filtration, then we have studied the mechanism of filtration, the term used in the filtration process, factors affecting filtration, rate of filtration. Then we have studied the filter mediums and filter aids. Okay, so this is all about today's lecture. In next lecture we will start with the equipments which are used in the filtration process. Okay, thank you very much.